Hey, this side the bogus dog, and you are watching a PYQ video in the Cortex Medicine channel. Okay, so this will be in English. This वीडियो विल बी इन इंग्लिश बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मुझे मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है उससे समझाने में थोड़ा इजी रहेगा ओके एंड आई विल यूज द टर्मिनोलॉजी पार्ट इन इंग्लिश ओके सो ये एक सिगार्ड एंडरसन नोमोग्राम है एंड दिस इज आस्क इन प्रीवियस क्वेश्चन इन मे बी 9 so how will you interpret this okay first thing always remember to interpret this in the x-axis this is pH okay or in the y-axis it is always SU3 okay remember and in the middle part of is the curvy diagram is always told us about PCO2 okay how can you remember this you remember that gas can go anywhere so this is like same okay PCO2 in the middle pH in the x-axis and HCO3 in the y-axis first part first finish सेकेंड पार्ट इफ यू सी हम एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं जो ब्लड का पीएच होता है ऑलमोस्ट 7.4 के अराउंड उसको मान लिया हमने नॉर्मल पॉइंट इज द बेस पॉइंट ओके अब रिलेटिवली इसके रिलेटिवली टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं पीएच को इसको ठीक है तो इस पार्ट के इस तरफ जा रहे हैं हम ओके तो दिस इज द बेसिक पार्ट एज पीएच इज इंक्रीजिंग हियर एंड दिस विल बी द एसिडिक पार्ट ओके डन इतना समझ में आया आगे हम क्या करते हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए क्या करेंगे देखो ये है जो नॉर्मल पार्ट है इसको हमने नॉर्मल लिया बिल्कुल सेंट्रल सेंट्रल के इधर जो भी आया वो एसिडोसिस पार्ट सेंट्रल के इधर जो भी आया वो हुआ एल्किलोसिस पार्ट ठीक यहाँ पे एक चीज आप फोकस करेंगे इफ यू फोकस वन पॉइंट है इन द मेटाबॉलिक पार्ट देयर इज नो acute and chronic stage why because for the metabolic compensation we do compensate it by respiratory process okay and respiratory process for the metabolic part is so fast like in within minutes or hours okay so there is no acute and chronic stage okay like lung do ventilation and adjust fast so for like lung is doing hyperventilation more the CO2 will excrete more acid excretion happening or if the lung reduce ventilation more time of gas exchange the CO2 will retain in the body and alkalize okay for the respiratory part which part will adjust it is the kidney that gonna adjust so kidney some process takes minutes to hour and some will take days you know it okay just now we are going into the question part of this chapter and we will explain nomogram little bit later okay if you see the pH range is around 7.36 to 7.44 but we take the middle of this pH is 7.4 you have to remember it ratify it that ये आपको रटना ही है okay remember this okay so if you remember pH is 7.40 PCO2 is 40 and SCO3 is 24 okay what is the anion gap sodium minus chloride per SCO3 normal होता है 8 to 12 के around okay we will read the metabolic part in this video okay if you see normal metabolic acidosis SU3 for the metabolic acidosis for compensation SU3 will rise okay okay मतलब in the metabolic acidosis part SU3 will rise and for the compensation it is compensated by decreasing chloride so how will it gonna happen if the it is the GI loss the disease will be VIPoma or ureterosigmoidostomy or it can be renal loss so the disease will be RTA okay they will simply ask for the metabolic acidosis there is a compensation by chloride and compensation by the RTA okay for the high anion gap okay this is an ion gap for high anion gap it is the unmixed ion which is more and this can be remembered by the trick mud piles methanol uremia DK propylene glycol means alcohol isoniazide iron lactic acidosis ethylene glycol it is the alcohol and salicylate or starvation so for to analyze a ABG first see the pH if pH is decreasing it is acidic if pH is increasing it is basic now we have to see other ions to find out primary metabolic abnormality and I think this is the most important line okay if the pH is acidic okay and SCO3 is decreasing it is the metabolic acidosis okay if the just you have to see that what is the pH and what is the primary
metabolic abnormality. Okay, you can do simply by this. If the pH is decreasing and PaCO2 is increasing, it is the respiratory acidosis and so on and on. You will remember by the, if you solve the equation, we will learn it easily. Okay. So first pH, okay, ion which goes in the same direction. Metabolic part, as I told you, there is no acute and chronic. Okay. If we go for compensation, learn for the compensation. For metabolic acidosis, SU3 is less. Okay, in the body, SU3 is less. Okay, for the metabolic acidosis, we have to do compensation by respiratory alkalosis. Okay, we have to do, this is base. Okay, we have to increase the, as base is decrease, सॉरी जैसे जैसे बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर, तो हमें क्या करना है, एसिड को भी डिक्रीज करना है एडजस्ट करने के लिए। ओके, ओके, एसिड को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करेंगे, हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे। हाइपर वेंटिलेट करने से क्या होगा बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। ओके, तो एसिडोसिस कैसे कंपनसेट होगा, एल्किलोसिस से। ओके, सेम फॉर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, यहाँ पे SU3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बेस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड को इंक्रीज करना पड़ेगा। एसिड इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोवेंटिलेट करेंगे। बॉडी क्या करेगी, हाइपोवेंटिलेट करने से CO2 को रिटेन करेगी और बॉडी के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहाँ पे देखें हम कन्वर्जन फैक्टर, तो फॉर 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 को डिक्रीज करने के लिए बॉडी को 1.2 mm ऑफ PCO2 को क्या करना पड़ता है, हाइपर वेंटिलेट करके आउट करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है। एंड फॉर 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ SCO2 को कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में हमें 0.7 mm ऑफ PCO2 को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, रिटेन रखना पड़ता है बॉडी के अंदर। सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे तो 1.2 है लेकिन यहाँ पे 0.7 है। व्हाई इज दिस इज सो, बिकॉज हम हाइपर वेंटिलेट इजीली कर सकते हैं, वी कैन डू हाइपर वेंटिलेट इजीली। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट मैक्सिमम कितनी है और पेशेंट कितनी देर में फैटीग होएगा। ठीक है, ये उसकी क्या है, लिमिट है। बट फॉर द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दिस लिमिट इज लेस, बिकॉज जब पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करेगा, बॉडी रिटेन रखेगी CO2 को, तो वो पेशेंट का CO2 भी, ऑक्सीजन भी कम होगा। when the patient get less oxygen, patient will get into hypoxia, and then body क्या प्रायोरिटाइज करती है कि हमें ऑक्सीजन को प्रायोरिटाइज करना है ओवर द एसिड एंड बेस। दैट्स वाई इफ यू सी, यहाँ पे कंपनसेशन के अंदर 1 मिलीक्यूलेंट ऑफ HCO3 कंपनसेशन के लिए 1.2 mm ऑफ Hg यूज हो रहा है। यहाँ पे लेकिन 1 मिलीक्यूलेंट के लिए कितना यूज हो रहा है, 0.7 mm Hg ऑफ PCO2। ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस now. Why here is 1.2 and why here is 0.7? By this factor you will remember it lifelong. There is no rectification, that where is 1.7, where is the 1.2, where is the 0.7. Okay, for the acute and partial compulsion, always remember for the acidosis part, if the expected value is less than the adequate compensation, and for the alkalosis part, if the expected value is more than the adequate compensation. Okay, let's do delta gap is measured and gap minus normal and gap, and the ratio is the normal delta and gap upon the bicarb. Okay, delta bicarb, and you will go for Hegma and Negma and metabolic associate metabolic alkalosis with this. Okay, first question by this, if the just I am doing this, if you see here, okay, pH is 7.25, okay, SU3 is 14 given in the equation, PCO2 is the 30. First see if the pH is okay 7.25, it is acidic, okay, SU3 is also 14, it is acidic, okay, and PCO2 is 30, it is alkalosis. Now see which two part is showing same along the pH. If the pH is acidosis, then which part is showing acidosis, SU3. Okay, so the primary will be the metabolic acidosis. Okay, so primary will be defined by the pH. Okay, just uh, just make it like it is decreasing, SU3 is decreasing, PCO2 is decreasing, pH is decreasing. If you divide the trick decreasing, then you will get confused. So just do in a mind that what are the factor that is doing the acidosis or alkalosis, या कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि सेम pH के साथ सेम
एसिडोसिस से एल्किलोसिस शो कर रहे हैं। जो भी एसिडोसिस से एल्किलोसिस शो करेगा वो वाला पार्ट प्राइमरी मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे प्राइमरी मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या है? एसिडोसिस। ओके, सो दिस इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब अपन को देखना है कंपनसेशन। एज यू नो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कंपनसेट करने के लिए बॉडी CO2 को हाइपरवेंटिलेट करेगी। हाइपरवेंटिलेट विल बी इजियर पार्ट्स। हम कंपनसेशन किस फैक्टर से करेंगे? 1.2 से। कंपनसेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? PCO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, और SCO3 क्या होगा? SCO3 भी क्या करेगा? कम हो गया है। ठीक है, SCO3 कम है, एसिडोसिस है, तो कितने से कम है? 24 से कम है, तो हम 24 से डिवाइड माइनस कर लेंगे कि कितना पॉइंट कम है? 10 पॉइंट कम है। तो 10 पॉइंट SCO3 कम करने के लिए हमें कितना कंपनसेशन करना है? 1.2 से 1 इक्विवेलेंट के लिए 1.2 से PCO2 कम करना है, तो मल्टीप्लाई करा तो 12 आया, तो 12 को डिग्री माइनस कर दिया तो आया 28। 28 से 30 से कम है या ज्यादा है? 28 कम है 30 से, मीन्स इट इज नॉट फुली कंपनसेटेड। ओके, यदि यहाँ पे ये कितना होता? 27 होता, 26 होता, तो इट इज द फुली कंपनसेटेड। तो यहाँ पे क्या है? ये partially compensated metabolic acidosis. Okay, if you go and see the, okay, I will do this question in front of you. Okay, it will take time, but you will learn it easily. Now see, देख pH कितना है? 7.48 है किसी पेशेंट का, PCO2 कितना है? 50 एंड SCO3 32 है। ओके, pH क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, 7.4 से बढ़ रहा है, तो दिस विल बी एसिडिस। ये एसिडोटिक पार्ट को शो कर रहा है। ये किसको कर रहा है? PaCO2 बढ़ रहा है, ये भी एसिडोसिस को शो कर रहा है। एंड SCO3 भी बढ़ रहा है, ये किसको शो कर रहा है? एल्किलोसिस पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, डन इतना। ये दोनों एसिडोसिस एसिडोसिस को शो कर रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली ये वाला पार्ट एल्किलोसिस को शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है? PaCO2 बढ़ रहा है, एसिडोसिस को। और ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है? SCO3 24 से बढ़ रहा है, तो एल्किलोसिस को। ओके, सो दो पार्ट एल्किलोसिस को हो रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पीएच क्या हो रहा है? यहाँ पे पीएच अफेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पीएच इज दी, इट विल बी मेटाबॉलिक पार्ट। एंड ये क्या हो रहा है यहाँ पे? SCO3 का ही चेंज हो रहा है। PaCO2 के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो रेस्पिरेटरी वाला पार्ट नहीं जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेटाबॉलिक पार्ट। और मेटाबॉलिक कौन सा? एल्किलोसिस। ये क्या हो गया? इसका प्राइमरी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब हम मेटाबॉलिक प्राइमरी डिफेक्ट पता लगे, अब हमें देखना है कि कंपनसेटेड है या नहीं है। प्राइमरी यदि किसी पेशेंट का मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, एल्कलोसिस के अंदर क्या होता है? CO2 को रिटेन करना होता है, पेशेंट हाइपोक्सिया में जाएगा, तो हमें फैक्टर कौन सा काम में लेना है? लेस वाला फैक्टर कौन सा होगा? 0.7। यहाँ से हम 0.7 लेंगे, तो एक पी। अब ये एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस के अंदर क्या करना है हमें? CO2 को बढ़ाना है। ओके, तो SCO2 यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो CO2 बनाने के लिए कितना चाहिए हमें? 0.7 से बढ़ना चाहिए बर्न मिल इक्विवेलेंट के लिए। यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है? 50। यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है? 32, तो 32 में से 24 गया, तो ये हो गया 8 मिली इक्विवेलेंट। तो 8 मिली इक्विवेलेंट SCO3 के लिए हमें कितना CO2 बढ़ना चाहिए? 0.7 इंटू 8, 5.6 CO2 बढ़ना चाहिए PCO2। ओके, CO2 यहाँ पे कितना है? 50। नॉर्मल कितना होता है? 40। 40 में से 5.6 ऐड किया, कितना आया? 45.6। इफ यू सी, गो एंड सी, 45.6 इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होना चाहिए? जो मैंने बोला था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए एडिक्वेट कंपनसेशन कब होएगा? जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है। जबकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए कब होएगा? जब एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस है। यहाँ पे 28 थी, आई थी अपने कैलकुलेट करने पर, लेकिन थी कितनी क्वेश्चन के अंदर? 30। कम नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, मोर है। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बाय पॉजिंग द वीडियो। यहाँ पे एक पार्ट है जो मैं समझाना बोल रहा था आपको, कि जो मैं बोलना चाह रहा था कि मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कैसे डिफाइन किया हमने। हमने क्या किया? जो दो पार्ट सेम साइड जा रहे थे उनको उठाया, और उसके अलावा यदि SCO3 चेंज हो रहा है तो मेटाबॉलिक वाला पार्ट जाएगा। ओके, यहाँ पे भी ये कहना चाह रहा हूँ, इस वाले जो डायग्राम में है, आई एम एक्सप्लेनिंग सेम। मेटाबॉलिक पार्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे पीएच कम हो रहा है। ओके, पीएच के अलावा SCO3 भी कम हो रहा है। प्राइमरी डिफेक्ट क्या हो गया? इफ पीएच इज गोइंग लेस एंड SCO3 इज गोइंग लेस, it is will metabolic acidosis, or it will be same like metabolic alkalosis. अब यदि आप डिफाइन करेंगे अक्यूट और अक्यूट पार्ट को, अक्यूट विल बी मोर। अक्यूट के अंदर क्या होगा? पेशेंट क्या करेगा? अभी कंपनसेट नहीं कर रहा है,
Chronic wala part will be more closer to normal because it is compensating. Okay, if you see like around the 7.4 part, it is more close. Then you will go with the compensation. You will go with the कि patient compensate कर रहा है, respiratory part है, compensate कर रहा है उसके अंदर. Either chronic है, acidosis है, alkalosis है. You will define it. If it is far away, then you will see it is acidosis part or alkalosis part that is not compensating. Okay, by this. एंड इफ यू सी की डायरेक्शन सेम साइड में आ रही है मेटाबॉलिक जैसे एसिडोसिस की या फिर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की, इफ यू सी यहाँ पे एल्किलोसिस कैसे हो रहा है, एक तो देखो पेशेंट के अंदर SCO3 भी हाई है और पीएच भी हाई है. ओके, दोनों के अंदर क्या हो रहा है, दोनों सेम तरफ जा रहे हैं. SCO3 भी एल्किलोसिस की तरफ को सपोर्ट कर रहा है और पीएच भी एल्किलोसिस को सपोर्ट कर रहा है. आई एम सेइंग यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो देखो यहाँ पे पीएच भी एल्किलोसिस को सपोर्ट कर रहा है. ओके, बेसिक वाला पार्ट, और SCO3 भी एल्किलोसिस वाले पार्ट को सपोर्ट कर रहा है. ये जो 3 राउंड है ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए प्राइमरी इफेक्ट क्या हो रहा है वहाँ पे इस वाले डायग्राम के अंदर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस. ओके, आई होप इट विल बी इजी टॉपिक फॉर यू. In the next video we will learn about the acidosis part and the compensation. Thank you. Keep loving, keep sharing.